ओके, आवाज़ क्लियर है बेटा? वीडियो भी क्लियर है? आवाज़ आ रही है बेटा? यस सर। फिर ओके बेटा, लास्ट क्लास में हम सीक्वेंस सीरीज एपी का स्पेशल प्रॉपर्टीज के ऊपर क्वेश्चंस कर रहे हैं. ओके, लेट अस कंटिन्यू विद इट. So the next question that we are going to discuss is so last class में देखा है ना बेटे, ABC are in AP, prove that something else are in AP, so on, right? So the question is again, A, B, C are in AP, prove that 1 by root of B plus root of C, comma 1 by root C plus root A, 1 by root A plus root B are also in AP. A question. ठीक है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डू इन मैकेनिकल मेथड. मैकेनिकल मेथड याद है कि हम कल डिस्कस कर रहे थे. मैकेनिकल मेथड में हम क्या करते हैं, ABC आर इन AP implies 2B equal to A plus C, right? ABC आर इन AP implies 2B is equal to A plus C, सही है? यस सर। ऑडियो क्लियर है ना बेटा? Yes, sir. सर मतलब Yes, sir. Okay, good. So if these three are at AP, अगर मान लीजिए हमको प्रूव करना है ये तीन नंबर्स AP में हैं, what is that we need to prove? So to be proved जो to be proved is 2 times 1 by root C plus 1 by root A is equal to 1 by root B plus root C plus 1 by root A plus root B. सही है? यही प्रूव करना ना सर? यस सर। सो आप देखिए, many times instead of this expression 2b equal to a plus c, that is one condition. दूसरा कंडीशन क्या है, b minus a is equal to c minus b है. सर both of these are same actually, just different ways of writing the same thing, right? दोनों सेम है क्या नहीं? यस सर, सेम है। Yes, sir. सो बहुत बार क्या होता है, देखिए ये तो प्रूव करना है आपको, or what else can you prove? You can also prove that 1 by root C plus root A minus 1 by root B plus root C is equal to 1 by root A plus root B minus 1 by root C plus root A. ठीक है, ये दोनों में कुछ भी प्रूव कर सकते हैं, दोनों सेम है ना? कभी कभी आपको ये वाला प्रूव करने से ये वाला प्रूव करना इजी लगेगा, because there is a symmetry in this equation which is not there in this equation. इस इक्वेशन में दोनों साइड्स जो है, both LHS and RHS are looking same, right or not? सो कभी कभी क्या होता है, ये वाला प्रूव करना थोड़ा सा इजी पड़ता है. ठीक है, so let us try to prove this system. So if you want to prove, you take LHS, you take RHS and try to simplify them to the same conclusion. So first LHS ले लेंगे. So LHS, what is the first step? आप LCM लेने के बाद रूट सी कैंसिल हो जाएगा. ऐसा Yes, sir. so यस सर। मैं क्या करता हूँ, this
proving this is same as proving root b minus root a by root c plus root a into root b plus root c is equal to, it's RHS में root a cancel हो जाएगा, so root c minus root b by root a plus root b into root c plus root a. Yes or no? Proving this is same as proving this. Yes or no? Yes, sir. आपका रूट सी प्लस रूट ए कैंसिल हो रहा है सर, विच इज सेम एज, देखिए ये डबल साइडेड एरोस जो है, दिस इज, ठीक है, इसका मतलब है बाई इम्प्लाइज, ठीक है, यूजुअली वन साइडेड एरो इज इम्प्लाइज राइट, टू साइडेड एरो का मतलब है अगर ये और ये दोनों कंडीशंस, the arrow works in forward direction, the arrow also works in backward direction. By implies का मतलब है these two statements are exactly same. समझ में? इसका मतलब पहला हुआ तो दूसरा होगा, दूसरा हुआ तो पहला होगा. Clear? Yes, sir. So which by implies again आप cross multiplication किया तो can you see something interesting here? ये root b minus root a, root b plus root a, which is b minus a. Yes or no? Is equal to root c minus root b into root c plus root b, c minus b. Yes or no? So proving this is same as proving this, and this is true, right? Which is true. Say again. क्योंकि ABC are in AP. Hence the given proposition is proved. Hence these three numbers are in AP. Clear again? Okay or not? Okay, sir. आगे जाएंगे. So आपको इस तरीके के क्वेश्चंस कैसे करते समझ में आ रहा है? Hope you understand how to do these type of questions. ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करके we'll go to the next topic. Okay. So next question. A, B, C are in AP. Prove that B plus C whole square minus A square, B plus C whole square minus A square, C plus A whole square minus B square, A plus B whole square minus C square are in AP. You have to prove that B plus C whole square minus A square, C plus A whole square minus B square, A plus B whole square minus C square are in AP. Okay? So कैसे कर सकते हैं देखिए. So again आप मैकेनिकल मेथड में कर सकते हैं या दूसरा क्रिएटिव मेथड में कर सकते हैं. So आप ध्यान से देखा तो these numbers are, जो नंबर्स दिए हैं वो b plus c minus a into b plus c plus a, right? First number. Second number c plus a minus b into c plus a plus b. Say again. A plus b minus c into a plus b plus c. Say again. Yes sir. Yes, sir. So Yes, ध्यान sir. से देखा तो you can see that a plus b plus c, a plus b plus c, a plus b plus c same है ना तीनों में. The multiplier is same, right? So effectively you don't need to prove that these three numbers are in AP. अगर आप first number, second number, third number ये तीनों AP में हैं, if you can show that, if A, B, C are in AP, KA, KB, KC are also in AP, right?
Yes, So sir. these numbers are slightly complicated. So आप क्या कर सकते हैं, instead of showing these numbers are in AP, you can simply show that these three numbers are in AP. Okay, so that will be my first aim. समझ में आ रहा है? So first मैं क्या करता हूँ, my first stage to be proved is B plus C minus A, C plus A minus B, A plus B minus C are in AP. This is what I'll try to show. If I can show that these three are in AP, तीनों को A plus B plus C से मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर्स आएगा वो भी AP में ही होना चाहिए सर. So to Yes. prove that these three numbers are in AP, what should I effectively prove? क्या prove करना पड़ेगा मुझे? So this to be proved is same as 2 times C plus A minus B is equal to B plus C minus A plus B minus C. सर यही प्रूव करना है, which by implies 2C plus 2A minus 2B is equal to minus A plus A कैंसिल हो गया, plus C minus C कैंसिल हो गया, 2B ऐसा, which is exactly same as 4B is equal to 2A plus 2C, which is exactly same as 2B is equal to A plus C. ऐसा, Yes, sir. which is true. सही है कि नहीं? This is true, right? क्योंकि ABC are in AP क्वेश्चन में दिया है. So 2B is equal to A plus C is true, hence this is true, hence the before step is true, hence this is true, hence this is true, right? So this implies B plus C minus A, C plus A minus B, A plus B minus C are in AP, which implies तीनों को मैं A plus B plus C से मल्टीप्लाई किया तो जो नंबर्स आएगा those will also be in AP, right? So B plus C minus A times B plus C plus A, C plus A minus B times C plus A plus B, A plus B minus C times A plus B plus C are also in AP, right? Which implies the given numbers are in AP. Clear? नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन करके हम नेक्स्ट टॉपिक में चले जाएं. नोट किया? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर आर इन AP. शो दैट a by b plus c, b by c plus a, c by a plus b are in AP. A square, b square, c square are in AP. You have to show that A by B plus C, B by C plus A, C by A plus B are in AP. Okay. So start करेंगे. So what is the given condition? 2b square is equal to a square plus c square जो है, this is given. Okay. समझ में आ रहा है? What is to be proved? देखिए, whenever you have fractional terms, 2b equal to a plus c से b minus a is equal to c minus b वाला कंडीशन जो है वो बेटर हो सिंप्लीफाई करने के लिए. So to be proved is b by c plus a minus a by b plus c is same as c by a plus b minus b by c plus a. समझ में आ रहा है? This is what we need to prove, right? So which is same as, इसको LCM लिया तो if you take LCM for this, so b times b plus c minus a times a plus c by b plus c into c plus a is equal to c times c plus a
माइनस बी टाइम्स ए प्लस बी बाई ए प्लस बी इंटू सी प्लस ए। सही है, यानी कैंसिलेशंस सी प्लस ए कैंसिल हो गया, राइट। सर Yes, sir. which by implies this is same as, देखिए so मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ कुछ कैंसिलेशंस यानी कैंसिलेशंस कुछ नहीं आ रहे ना, क्या कुछ कैंसिलेशंस हो रहे हैं। कुछ कैंसिलेशंस नहीं आ रहे, देखिए थोड़ा सा लंबा हो गया ना क्वेश्चन। बी स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए स्क्वायर माइनस ए सी बाई बी प्लस सी इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस ए सी माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर बाई ए प्लस बी, राइट। विच बाई इम्प्लाइज आपको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। सो इफ यू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, व्हाट आर द टर्म्स दैट यू गेट, ध्यान से देख लीजिए इसको, आप थोड़ा सा अरेंजमेंट कर सकते हैं। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस प्लस सी इंटू बी माइनस ए इंटू बी प्लस ए इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए इंटू सी माइनस बी टाइम्स सी प्लस बी। समझ रहे? Yes, which sir. by implies आप थोड़ा सा आगे जाएंगे। सो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू बी प्लस ए, सो बी क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए क्यूब प्लस सी टाइम्स बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी बी स्क्वायर माइनस सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, बेसिक मल्टीप्लीकेशन है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, जस्ट आई एम मल्टीप्लाइंग एंड सिंप्लीफाइंग। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, सी क्यूब प्लस सी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर सी माइनस बी क्यूब प्लस ए टाइम्स सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर। ओके, सो आर देयर एनी कैंसिलेशंस दैट आर हैपनिंग बाय एनी चांस? एक दो टर्म भी कैंसिल हो रहा है क्या? देखिए, प्लस बी क्यूब माइनस बी क्यूब कैंसिल नहीं हुआ। नेक्स्ट, एनी कैंसिलेशंस, माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, ये भी कैंसिल नहीं हो रहे। सी क्यूब माइनस ए क्यूब सी बी स्क्वायर बी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, कुछ भी कैंसिल नहीं हुआ। So I'll bring everything onto one direction. At some point of time you need to understand that we are not going in an efficient way. देखिए यूजुअली हम एफिशिएंट वे में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कैंसिलेशंस या कुछ ना कुछ सिम्प्लिफिकेशंस आते रहे, बट यहाँ देखिए ज़्यादा कुछ सिम्प्लिफिकेशंस नहीं हो रहे मेरा। ओके, सो 2b क्यूब यहाँ माइनस बी क्यूब प्लस बी क्यूब मिलकर 2b क्यूब हो गया। इसके बाद ठीक है, कैन यू सी दैट वी आर नॉट एंजॉयिंग डूइंग दिस प्रोसेस? फंस गया ना, थोड़ा सा लंबा हो गया प्रोसेस, ऐसा होता। आगे जाना चाहते हैं या कुछ और सोचना चाहते हैं? एनी ऑफ यू कुछ और सोचेंगे? Yes, sir. Yes, sir. बेटर है ना? ठीक है, Yes, sir. इसको आगे जाके ठीक है फाइनली तो आएगा, बट इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग सिंप्लीफिकेशन। ओके, सो मैं क्या करूँगा, आई जस्ट डू ए स्टेप इन द स्टार्टिंग सच दैट द सिंप्लीफिकेशन इज इजी। सो मैं इसको आई एम टेकिंग आउट। ओके, काम करता हूँ। सो फिर मैं एक और बार क्वेश्चन लिख रहा हूँ
क्या है क्वेश्चन? a square, b square, c square are in AP. Show that a by b plus c, b by c plus a, c by a plus b are in AP. Okay. So मैं पहला स्टेप में मैं क्या करूँगा इस बार देखिए, डू ए लिटिल सिंप्लीफिकेशन, ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन नहीं है. a by b plus c, b by c plus a, c by a plus b अगर AP में होना है तो ऐसा विल स्टार्ट विद दीज आर इन AP. अगर ये AP में होना है तो a by b plus c plus 1, b by c plus a plus 1, c by a plus b plus 1, ये भी AP में होना चाहिए सर. यस सर. ये प्लस 1 क्यों किया, कुछ किसी को आइडिया आ रहे? सर ऊपर वाला न्यूमरेटर a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, तो इक्वल हो जाएगा सारे. विच इम्प्लाइज a प्लस बी प्लस सी बाई बी प्लस सी, b प्लस सी प्लस a बाई सी प्लस a, c प्लस a प्लस b बाई a प्लस b और ऑल्सो इन AP. सर इसका मतलब अगर ये वाला AP में है तो ये भी AP में होना चाहिए. विच बाई इम्प्लाइज सारा तीनों टर्म्स को a प्लस बी प्लस सी से डिवाइड कर लीजिए. सो 1 बाई बी प्लस सी, 1 बाई सी प्लस a, 1 by a plus b should be in AP. Yes or no? अब थोड़ा सा इजी हो गया देखिए. Which by implies 1 by c plus a minus 1 by b plus c should be same as 1 by a plus b minus 1 by c plus a. Yes or no? And which by implies देखिए 1 by b 1 by c plus a minus 1 by b plus c, LCM लेने के बाद c से कैंसिल हो जाएगा सर. What will be left out? b minus a ऊपर सर, c plus a into b plus c is equal to राइट हैंड साइड में a कैंसिल हो जाएगा, you get c minus b by a plus b into c plus a, right? सर so c plus a कैंसिल हो गया. Which by implies b square minus a square is equal to c square minus b square आ गया. Sorry. Which by implies Yes, sir. 2b square is equal to a square plus c square, which is given. ये वाला ओके लग रहा है this time? यस सर. Yes, sir. So ये छोटे छोटे सिंप्लिफिकेशंस जो है वो आपको सोचना पड़ेगा. इट्स नॉट लाइक आंख बंद करके आगे चले जाऊंगा. ठीक है, स्टार्टिंग में यू कैन ट्राई, बट इफ यू गेट स्टक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम यू कैन गो बैक एंड थिंक अबाउट समथिंग दैट यू कैन डू इन द स्टार्टिंग. क्लियर? लेकिन आपका टेक्स्ट बुक में बहुत सारे एग्जांपल्स मिलेगा. यू हैव टू लुक एट द एग्जांपल्स, यू हैव टू ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट आर यूज्ड. सो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? इफ समथिंग is given, if certain number of terms are in AP, you have to prove that the other set of numbers are in AP. Clear? Yes, sir. यस सर. Yes, sir. Okay? So can I go forward? यस सर. So next, that concludes our first topic, which is AP. Okay? So next we are going to look at geometric progression. Okay? So geometric progression में भी exactly the flow will be same as we have done the previous topic. AP में जो flow है वही flow आपका GP में भी रहेगा. So first thing, what is the definition of a geometric progression? Geometric progression का definition है Tn by Tn minus 1 is always a constant. The ratio of any two constitutive terms is constant, then the sequence is called a GP. This is a mathematical definition for all n greater than or equal to 2. Basically T2 by T1,
T3 by T2, T4 by T3, T5 by T4 सबका नंबर सेम होना चाहिए. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल 1, 3, 9, 27, 81, so on. This is an example of a geometric progression. Okay, आप देख लीजिए 3 by 1 कितना है? 3. 9 by 3 is also 3. 27 by 9 is also 3. 81 by 27 is also 3. Yes, sir. The constant ratio is called the common ratio. जैसा AP में हम constant difference को common difference बोलते हैं, geometric progression में we call it the common ratio. Okay? Clear? Yes, sir. So again, the Yes, geometric sir. progression is also defined by two parameters, the first term and the common ratio. If you know the first term and the common ratio, you know everything about the GP. समझ में आ रहा है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और रेशियो कितना हो रहा है. You can construct the geometric progression. Clear? So if A is the first term and R is the common ratio, the sequence will look something like this. First term A है, next term क्या होगा? A into R होगा. समझ में आ रहा है? अगर कॉमन रेशियो 3 है, फर्स्ट टर्म 1 है, नेक्स्ट टर्म क्या होगा? 1 into 3. नेक्स्ट टर्म विल बी A into R square. a into r square, एक और r से मल्टीप्लाई होगा. नेक्स्ट टर्म विल बी ar cube, नेक्स्ट टर्म विल AR बी ar cube. power 4, ar power 5, so on. ऐसा. As you can see, this is the first term, right? फर्स्ट टर्म में r नहीं है. दिस इज सेकेंड टर्म. सेकेंड टर्म में r का पावर कितना है? 1 है. थर्ड टर्म में r का पावर कितना है? 2. फोर्थ टर्म में r का पावर 3. फिफ्थ टर्म में r का पावर 4. सिक्स्थ टर्म में r का पावर 5. सो nth टर्म में r का पावर कितना होना चाहिए? N minus 1. N minus 1. ये दिख रहा है आपको? a इंटू आर पावर n माइनस 1 होना चाहिए. देखिए, जो भी टर्म का नंबर है r का पावर में उससे एक कम हो. क्लियर? सो दिस गिव्स यू द फॉर्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ a GP. So what is the nth term of a GP? a into r power n minus 1. Clear? जैसा ए बी में a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ भी n माइनस 1 आपको दिख रहा है. देखिए, GP का भी nth टर्म में यू आर लुकिंग एट n माइनस 1. क्लियर? Yes, sir. So next, you note here. Yes, sir. सेकेंड आपका फर्स्ट स्टार्टिंग में जीपी का बेसिक क्वेश्चंस होगा बेस्ड ऑन द nth टर्म. ओके, सो बेसिक क्वेश्चन आप देखा तो 6 8 सर थोड़ा सा पीछे करिए ना सर, थोड़ा सा पीछे. देख लीजिए. हो गया सर, हो गया. ठीक है, सिक्स 18 54 162 so on. What is the common ratio? बहुत सिंपल क्वेश्चन. 3. इजी है ना? द कॉमन रेशियो इज 3. क्लियर? 1 by 4 minus 1 by 2, 1 minus 2, 4, so on. What is the common ratio of this? What is the common ratio of this? -2. Common ratio is -2, right? Yes or no? कोई भी नंबर, कोई भी टर्म से उसका प्रीवियस टर्म डिवाइड करना पड़ेगा. ओके, द रेशियो इज ऑलवेज इक्वल टू -2 दिस टाइम. क्लियर? ओके, सो आप ध्यान से देखिए, अगर
इफ यू लुक एट एपी, एपी में अगर कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो दैट इज एन इंक्रीजिंग जीपी, राइट, इंक्रीजिंग एपी। अगर कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है तो इट इज ए डिक्रीजिंग एपी, राइट, सही। सो जीपी में कॉमन रेशियो अगर नेगेटिव है तो हाउ डज द जीपी लुक लाइक? पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव नेगेटिव जैसे जाएगा, क्लियर है? Yes, sir. Okay, so now I want to find the 10th term of this. I want you to find the 10th term of this progression. So क्या होगा? What is the 10th term? 1 by 4 a into common ratio is -2, power कितना करना पड़ेगा? 9. -2 power 9. Okay, so because this is an odd power, एक माइनस बच जाएगा, इसलिए ऊपर 2 power 9, नीचे 2 power 2, राइट? सो 2 power 7 which is -128. Clear? Easy? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Next, third question. 1 root 2 minus 1 by 2 root 3, 3 minus 2 root 2 by 12, 5 root 2 minus 7 by 24 root 3, so on. Find the 5th term of this sequence. Find the 5th term of this sequence, okay? So first, ये GP है क्या नहीं? Is it a GP or not? So GP टॉपिक में है, so शायद GP है, एक बार चेक कर लीजिए। So basically first term is 1 root 2 minus 1 by 2 root 3. अगर GP है तो common ratio क्या होना चाहिए? root 2 minus 1 by 2 root 3 होना चाहिए सर। Yes, sir. Yes, So sir. the third term should be root 2 minus 1 by 2 root 3 से फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर। Yes, sir. So this has to be root 2 minus 1 by 2 root 3 whole square, सर। वह चेक कर लीजिए वैसा हो रहा है क्या? So if you check, it is turning out to be exactly the same. So 3 minus 2 root 2 by 2 root 3 whole square तो 12. इसका मतलब what is this term? We have multiplied this again by root 2 minus 1 by 2 root 3, right? Yes, sir. Yes, sir. So next term T5 का मतलब next term ही चाहिए आपको. So what is T5? Simply instead of starting with this, we can start with the 4th term and multiply it with root 2 minus 1 by 2 root 3, right? Yes, sir. Yes, sir. So denominator में क्या आएगा? 24 into 2, 48 into 3, ना 144, okay? And numerator में क्या आएगा? 5 root 2 into 2, 10 plus 7 minus 5 root 2 minus 7 root 2 minus 12 root 2. So 17 minus 12 root 2 by 144 is the answer. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Note किया? Yes, sir. So next question, in a GP T4 is equal to 54, T9 is equal to 13122. Find the GP and general term. Find the GP and the general term. Easy है क्वेश्चन? जैसे जैसा AP में है, GP also
needs two informations. Any question on GP needs two information. That's all. क्योंकि A and R निकालना पड़ेगा. So T4 का मतलब क्या है? AR cube is equal to 54. T9 AR power 8 is equal to 13122. That's all. So ये दोनों को यूज करके A and R निकाल सकते हैं. Yes, sir. Just divide कर लीजिए. R power 5 is equal to 13122 by 54. That's all. So 243. So 243. So R power 5 is 243. This implies R is equal to 3 हो गए. So common ratio 3. आप कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर लीजिए. A is turned out to be 2. That's all. A into 27 is equal to 54. A is equal to 2. So what is the GP? So GP starts with 2, 6, इसके बाद 18, 54, so on. That's the GP. What is the nth term? Nth term is nothing but 2 into 3 power 2 into 3 n minus 1. Clear? Yes, sir. Next. नोट कर लीजिए. थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में जाओ. Yes, sir. Yes, sir. देखिए 4th, 7th and 10th terms of a GP are A, B, C respectively. Show that B square is equal to AC. A, B, C are 4th, 7th and 10th terms of a GP. Show that B square is equal to AC. Proof का क्वेश्चन है. बहुत डिफिकल्ट नहीं. So how do we start? So we need to write the expressions correspond to 4th, 7th and 10th terms. So उसके लिए GP का फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो एज्यूम करना पड़ेगा. Let the first term and common difference of the AP of the GP, right? Of the GP B, A and R. Okay. ऐसे एज्यूम करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम है. What is the problem in the first step? A दो बार आ रहा है. हाँ, A ऑलरेडी क्वेश्चन में कुछ और रिप्रेजेंट कर रहा है ना. So if you use small a here again, you get confused. So मैं क्या करूँ? अब कुछ और लेटर यूज कर सकते हैं. कैपिटल यूज कर सकते हैं. ओके. So according to the problem. Small a, small b, small c के expressions बोलिए. Small a equal to what? Capital A into R power how much? Q. नहीं 3. सर क्योंकि 4th term R का power 3 आ रहा है. B is capital A into R power 6. capital A into R power 9, right? Because C is the 10th term. So जो शो करना है वो दिख रहा है क्या नहीं आपको? Basically what is B square? A square R power 12. Yes sir. What is AC? A square R power 12. समझ रहे? Yes, sir. So this implies B square is equal to AC. Clear?
आगे जा सकता हूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. A, B, C, D are in GP. Prove that A square plus B square plus C square times B square plus C square plus D square is equal to AB plus BC plus CD whole square. This is the first thing. B minus C whole square plus C minus A whole square plus D minus B whole square is equal to A minus D whole square. These are the two things that you need to prove. Easy है क्या? ये A, B, C, D are in GP. You have to show the two statements that are given. So ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इजी वाला मेथड जो let B is equal to AR, C is equal to AR square and D is equal to AR cube बोल सकता हूँ, क्योंकि ABCD आर इन GP कुछ ना कुछ कॉमन रेशियो तो होगा सर. यस सर. सो आपको जो भी प्रूव करना है उसके LHS RHS में हाँ बोलिए. So capital E is capital A क्योंकि A already है sir. क्या है बेटा आप सब ये बहुत नॉइस आ रहा है, बोलिए. ओके सो LHS में भी ये सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, RHS में भी सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, दोनों तरफ सेम आया तो दैट मींस यू हैव प्रूव्ड द स्टेटमेंट. सही है. सो RHS में व्हाट इज AB? AB plus BC plus CD is equal to A into AR, A square R, B into C, A square R cube, C into D, A square R power 5. Sorry. सही है. That is nothing but A square R अगर कॉमन लेते हैं 1 plus R square plus R power 4, right? Clear? यस सर. So this is my AB plus BC plus CD. इसका होल स्क्वायर का मतलब क्या है? AB plus BC plus CD whole square is equal to A power 4 R square 1 plus R square plus R power 4 का whole square. This is my RHS. So let us do the same thing for LHS. LHS में A square plus B square plus C square is equal to A square plus A square R square plus A square R power 4. Sorry. Which is equal to A square कॉमन लिया तो 1 plus R square plus R power 4, right? यस सर. B square plus C square plus D square कितना है? B square plus C square plus D square is A square R square plus A square R power 4 plus A square R power 6, right? So इस बार A square R square कॉमन लिया तो again 1 plus R square plus R power 4, right? यस. So ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा? A square plus B square plus C square times B square plus C square plus D square is equal to A power 4 R square 1 plus R square plus R power 4 का whole square. Sorry. This is 1, this is 2. दोनों सेम है क्या? ये 1 नहीं है, नीचे वाला 1. Sorry. ठीक है. A power 4 R square 1 plus R square plus R power 4 whole square. दोनों सेम है ना? Hence proof. यस सर. Hence proof. Clear?
बी स्टेटमेंट अपने से करना है. आई वांट यू टू डू. ठीक है, इसके बाद आई लास्ट समवन टू शेयर द स्क्रीन. ठीक है, करके मुझे दिखाना पड़ेगा. सो आई गिव यू 5 minutes टू डू द क्वेश्चन. शायद 5 मिनट की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, फास्ट कर लीजिए. ठीक है, करके दिखाइए. अगर किसी का हुआ तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं. जस्ट वांट टू सी हाउ मेनी ऑफ यू आर डूइंग. किसी का हुआ बेटा? अनुजित बेटा, अनुजित तो कैमरा ऑन कर लीजिए. आपका सॉल्यूशन शेयर करिए. अनुजित सुनाई दे रहा है बेटा?
अनिकेत Yes, sir. हुआ बेटा? हुआ? सेम आया LHS एंड RHS? No, sir. यस सर हो गया. ओके. आदित्य प्रसाद. आदित्य प्रसाद. आदित्य प्रसाद. अविरोध. हुआ कुछ इन्होंने किसी का? नहीं सर. क्या बहुत दिक्कत हो रहा है क्या? सेम नहीं है? नो सर हो गया. नीरज शर्मा, सार्निक, दोनों में किसी का हुआ बेटा? संपूर्ण, सप्तर्षि. क्या बेटा किसी का हुआ नहीं? b minus c whole square plus c minus a whole square plus d minus b whole square is equal to a minus d whole square प्रूव करना है. b का मतलब है ar minus ar square का whole square. ar square minus a whole square plus ar cube minus ar whole square. ऐसा ना RHS. So यहाँ ar होल स्क्वायर ए स्क्वायर आर स्क्वायर कॉमन लिया तो 1 माइनस आर का होल स्क्वायर होगा. ए स्क्वायर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा. ए स्क्वायर आर स्क्वायर फिर कॉमन लिया तो आर स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा. ये दोनों में ए स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर अगर कॉमन लेते हैं 1 प्लस आर स्क्वायर होगा. So a square r square into 1 minus r whole square. आपको फाइनली कहाँ तक पहुँचना है वो भी थोड़ा सा करके रख लीजिए. a minus ar cube whole square, a square into 1 minus r cube का whole square. This is where you need to get. That is equal to a square into 1 minus r cube तो 1 minus r into 1 plus r square. यहाँ तक लेके जाना पड़ेगा. Yes or no? So now you will understand what to do here. That is equal to, देखिए r square minus 1 whole square, a square r square into 1 minus r whole square plus a square into 1 plus r square into r square minus 1 whole square को r minus 1 whole square into r plus 1 whole square लिख सकते हैं.
सो दैट इज इक्वल टू आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, 1 माइनस आर होल स्क्वायर और आर माइनस वन होल स्क्वायर तो सेम है, सो 1 माइनस आर होल स्क्वायर बाहर कर लेते हैं। सो व्हाट इज लेफ्ट आउट, ए स्क्वायर कॉमन लिया, 1 माइनस आर होल स्क्वायर, ए स्क्वायर 1 माइनस आर होल स्क्वायर कॉमन लिया तो मुझे बचेगा आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर प्लस 1 होल स्क्वायर। So you have to show that this is 1 plus r square whole square. ऐसा हो रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा है। नहीं हो जाएगा शायद। That is equal to a square into 1 minus r whole square into r square plus, थोड़ा सा अब सोच के करिए, r square plus 2r plus 1, ऐसा So you have to show that this is 1 plus r square whole square चाहिए, तो इसको expand करके can show that this is same, और इसको फैक्टराइज अगर करना है आपको, आप क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं आप, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर टाइम्स, तो यहाँ क्या कर सकते हैं आप, आपको आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 चाहिए, सो एक काम कर सकते हैं, यहाँ आर स्क्वायर प्लस 2r प्लस 1 है ना, एक आर को अगर बाहर कर लेते हैं, व्हाट विल बी लेफ्ट आउट, 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, और जब प्लस आर अलग करते हैं सो आपको आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर अलग आएगा, प्लस आर स्क्वायर, सो आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, एंड ये दोनों में ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर 1 प्लस आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 प्लस आर इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर, ये दोनों में आर कॉमन लिया था, विच इज इक्वल टू, देखिए आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 कॉमन है, 1 प्लस आर स्क्वायर एक और बार आ रहा है, सो ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस आर होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस आर का होल स्क्वायर हो गया। देखिए सिंप्लीफिकेशन समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. थोड़ा सा इन्वॉल्व है, आप थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा, बट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू दिस टाइप ऑफ सिंप्लीफिकेशंस। क्लियर है? देख लीजिए सिंप्लीफिकेशन, अगर इतना नहीं करना चाहते तो इसको जो 1 प्लस आर स्क्वायर, मैंने अलग प्रोसेस से किया है तो वो व्हाट्सएप में सेंड करते, यही शेयर कर सकते हैं, आप दिखाना है तो स्क्रीन शेयर कर सकते हैं चाहिए। ओके ओके सर बोलिए। सर वहाँ पर जो ए आर माइनस ए आर का ए आर स्क्वायर का होल स्क्वायर वो जो टर्म्स है उसमें से अगर आर नहीं कॉमन लेंगे तो इजी से आ जाएगा। ठीक है, आपको देखिए इफेक्टिवली आपको यहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचते हैं आप, इट इज योर विश, मतलब स्टेप्स गलत नहीं होना चाहिए, एज लॉन्ग एज द स्टेप्स आर राइट आप कैसे भी कर सकते हैं। ओके सर अगर हम लोग एक्सपैंड कर दे उस टर्म को तो जल्दी से होगा, मतलब एक्सपैंड करके बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस सी एक्सपेंशन कर से जल्दी आ रहा है, जल्दी आएगा, बट आपको इतना मज़ा नहीं आएगा ना, जब फैक्टराइज करना है तो सोचना पड़ेगा ना मुझे। आप एग्जाम में कर सकते हैं, एग्जाम में आप जितना कम सोचना है उतना बेटर है एग्जाम में, बट जब आप प्रैक्टिस करते हैं यू हैव टू ट्राई टू थिंक इन डिफरेंट वेज। ओके, इसको एक्सपेंड करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ओके बेटा, समझ में आया? Yes, sir. यस सर। ठीक, अगर ये समझ में आता है विल स्टॉप हियर फॉर टुडे, हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, ये सॉल्यूशन शेयर कर रहा है क्या? जितना क्लियरली नहीं दिख रहा है। ओके बेटा, एक्चुअली स्क्रीन शेयर करने से व्हाट्सएप करना बेटर है, जैसा बोल रहे हैं। सर मैंने सोल्यूशन व्हाट्सएप में भेजा। ठीक है बेटा, देख रहा हूँ। बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस, ओके बेटा, ऐसा नहीं कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ओके बेटा, विल स्टॉप इट हियर फॉर टुडे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में आगे Yes, sir. ओके Okay, sir. ओके।